Hello, good morning FIBCom students. In the last two lectures, we were discussing about the types of tourism. Now we will discuss about the tourism potential in India. The potential of tourism in India can be understood with the help of tourism resources present in the country. The tourism resources can be divided into two wise, that natural resources and man-made resources. So when we are talking about the potential of tourism, it is related to the resources, tourism resources, which are divided into two parts. That first is natural resources and second is man-made resources. Let's have a look. Natural resources. The geographical features like topography, location, climate that act as a tourist attraction are called natural resources of tourism. Examples include mountainous area, snow-clad regions and coastal area. तो नेचर रिसोर्सेज आपको किसको बोल सकते हैं? द नेचर रिसोर्सेज लाइक टोपोग्राफी, देन लोकेशन, क्लाइमेट आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज, जो टूरिज्म के लिए अच्छी बात है। और हम बोलते हैं कि नेचर रिसोर्सेज में और क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे बोलते हैं माउंटेनियस एरिया, स्नो क्लेड रीजन है, हिमालय वगैरह, कोस्टल एरियाज मीन्स गोवा, मुरुडहाने बीच, these are called Konkan area. These are called that natural resources. Now we will talk about man-made resources. Man-made structures or establishment that act as a tourist attraction are called man-made resources. Example includes museums, historical monuments, tourism festival are called man-made resources. Means the resources which are made by human beings or establishment by human activities that which attract the tourist attraction, that are called man-made resources. तो उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजियम्स हो, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स हो, कि ताजमहल है, और बहुत सारे प्लेसेस हैं, और टूरिज्म फेस्टिवल जैसे राजस्थान, तो उसको हम बोलते हैं कि मैन मेड रिसोर्सेस हैं। आगे हम बात करते हैं that natural tourism potential in India. Natural potential. India has a very large variety of natural phenomena and resource of tourism, with its diverse geographical features ranging from high mountains to low-lying plains and water bodies, and India has lot to offer. It has potential to satisfy all the tourism purposes demanded by the different types of tourists. तो नेचुरल पोटेंशियल या हम बोलते हैं कि जब नेचुरल फिनोमेनन या जब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के पास या हमारे भारत में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उसका हम बोलते हैं कि जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो भी अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई माउंटेन से लेके लो प्लेन तक या वाटर बॉडीज तक लेके या कोस्टल एरिया लेके, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका पर्पज़ यही होता है कि मीन्स जो टूरिस्ट होते हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए, और डिमांड मीन्स टूरिस्ट की भी जो डिमांड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को विजिट करना है। So natural potential of the tourism in India can be studied by dividing them into three ways: high mountains regions, plains and waterways. तो natural resources में भी जो हम बोलते हैं कि उसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। एक तो सबसे पहला हाई माउंटेन रीजन्स में हिमालय, प्लेन्स और प्लेट्यू, और दूसरा है वाटर बॉडीज। आगे बात करते हैं, ये देखिए नेचुरल टूरिज्म रिसोर्सेज, उसमें तीन पार्ट में ये बटा हुआ है। अभी हाई माउंटेन्स रीजन मतलब क्या? That India has many high mountain ranges which are represent in all the direction. Himalaya mountains in the north and east, Eastern Ghat on the Eastern Ghat and Eastern Ghat, that Western Ghat on Western coast, and Aravallis at the western and the Vindhya and Satpura ranges in the central part. That mountains have cooler climate and wilderness that attract the tourists. तो जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन्स में जैसे हम बोलते हैं कि ये प्लेसेस कहाँ पे हैं या क्यों टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, तो सबसे पहला आता है हिमालय माउंटेन्स जो नॉर्थ और ईस्ट में फैला हुआ है। देन ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों भी, वेस्टर्न घाट जो हम वेस्टर्न कोस्ट पे, और अरावलीज
तो अरावलीज ये जो घाट है या वेस्ट में आया है, और विंध्या एंड सातपुता रेंजेस जो सेंट्रल पार्ट में आया हुआ है। क्लाइमेट क्यों अच्छा लगता है पहाड़ियों पे? तो एक तो उनका जो क्लाइमेट होता है वो कूलर होता है, और हम बोलते हैं कि वाइल्डरनेस, कि उसकी जो हम बोलते हैं ऊंचाइयाँ होती हैं या उसका जो एटमोसफियर है वो टूरिस्ट को ज़्यादा आकर्षित करता है। ड्यू टू द अल्टीट्यूड एंड द टोपोग्राफी एंड द माउंटेन सर्व द हॉटस्पॉट फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। और दूसरी उसकी जो खासियत है, तो एक तो ट्रैकिंग जहाँ पे हम बोलते हैं कि एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि ट्रैकिंग है, या हम बोल सकते हैं कि अदर स्पोर्ट्स हैं, वो भी हम बोलते हैं कि बर्फीले पहाड़ में जो खेला जाता है। तो उसकी वजह से ये पहाड़ी एरिया है वो ज़्यादा लोगों के मन को छूता है। Hence, many hill stations and adventure sports have developed in the mountain regions of the country. For example, Mount Abu in the Aravalli ranges of Rajasthan, Shimla in Himalaya ranges in Himachal Pradesh, and Darjeeling in Assam and Korg in Karnataka are some of the famous hill station in India. तो हमें कहीं घूमना जाना तो सबसे पहले हम शिमला, कुल्लू मनाली, इसका हमें ये एक एग्जाम्पल सामने आता है। दूसरा है माउंट आबू है, जो अरावली रेंजेस में मीन्स राजस्थान में आया हुआ है। तीसरा है हिमालय है, जो हिमाचल प्रदेश में आया है। दार्जिलिंग है जो आसाम में है। तो ये कुछ प्लेसेस है कि जिसको हम हाई माउंटेन रीजन्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्लेन्स। प्लेन्स इंक्लूड the natural features like rivers, forests and sites of unique natural beauty like desert. तो प्लेन्स क्या करते हैं कि प्लेन्स हम बोलते हैं कि नेचुरल फीचर्स है, फॉर एग्जांपल रिवर्स है, फॉरेस्ट है, नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पे जैसे डेजर्ट है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच नेचुरल फिनोमेना। तो भारत को हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा एक खजीना है। There are many major and minor rivers which are attractive from the tourist point of view. Most of them also offer the sites for water sports and research. तो हम बोलते हैं कि ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी जो नदियां हैं, जो हम बोलते हैं कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और हम बोलते हैं कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स है, रिसर्च है, ये भी उसमें ऑफर किया जाता है। देन लैंड रिफॉर्म्स or landforms created by the rivers is a major attraction. The dams established on the rivers are attractive to the tourists. That forest resources like diversity in the species of flora and fauna attract the tourists. तो हम जब बात करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्या करते हैं, क्या देखिए जो रिवर थ्रू जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट किया जाता है, वो ज़्यादा हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन का प्लेस बन जाता है। फिर रिवर्स पे जो डैम्स बनाए जाते हैं वो भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का एक जरिया होता है। जैसे फॉरेस्ट में हम बोलते हैं कि बहुत सारी हम बोलते हैं कि डाइवर्सिटी स्पाइसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि वनस्पति है, कि हम बोलते हैं कि एनिमल्स हैं, तो ये सब कुछ टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फोटोग्राफर्स and wildlife researchers and students that view the forest quite often. In India, holy rivers of Ganga and Yamuna in the north receive the maximum tourists, and river Godavari, Krishna and Bhima are also famous for tourism. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि गंगा यमुना जो हम बोलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी कृष्णा का भीमा, ये हम बोलते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस के लिए एक आकर्षण बनाए रखती है। द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द वेस्टर्न घाट्स आर फ्रिक्वेंट टू विजिटेड टूरिस्ट। तो टूरिस्ट ज़्यादातर छत्तीसगढ़ भी देखना पसंद करते हैं और वेस्टर्न घाट भी देखना पसंद है। द थार डेजर्ट इन राजस्थान, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, द थार डेजर्ट इन राजस्थान, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात गुजरात आर द टाइम फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो गुजरात का कच्छ और हम बोलते हैं कि जो राजस्थान का थार रण प्रदेश है वो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। देन वाटर बॉडीज, अभी वाटर बॉडीज क्या? तो वाटर bodies included oceans, seas, rivers, and associated features like waterfall and plunge pool and natural lakes and ponds. And water bodies can
water bodies can landscape to the form special landforms and others the attract the tourists from the interdisciplinary fields. The coastal tourism and island, the coastal tourism and island tourism are the result of attraction of oceans and resultant attraction. तो water bodies में seas या oceans, rivers या उसके related उसके जो features है जैसे बोलते waterfall है, plunge pool है, कि lakes है, ponds है, वो water bodies में include किया जाता है. तो लैंडस्केप हम बोलते हैं कि स्पेशल फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म जो रिवर थ्रू क्रिएट किया जाता है वो अट्रैक्शन का एक रीजन बन चुका है. फिर कोस्टल टूरिज्म और आइलैंड टूरिज्म आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ओशन एंड द रिजल्टेंट अट्रैक्शन. तो कोस्टल एरिया हो या हम बोलते हैं कि आइलैंड एरिया हो तो वो एक ओशन बीच का या सॉरी ओशन का एक पर्टिकुलर प्लेस बन चुका होता है टूरिस्ट के लिए. Waterfalls are the major attractive worldwide, and even the small waterfall can attract the tourists and fulfill their purpose tourism. On the other hand, glacier which is frozen the water also attract the people. तो वाटरफॉल छोटा हो या बड़ा है लेकिन वो टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. और दूसरी जगह हम बोलते हैं कि ग्लेशियर्स जो हम बोलते हैं कि बर्फ़ की नदी या वगैरह, तो ये भी एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. Not not all can reach the site due to the problems associated with altitude and health. The Dhundadhar Falls in Madhya Pradesh and Gangotri glaciers, Uttarakhand, and all beaches and landforms created by Arabian Sea and the Bay of Bengal are the good examples. तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि धुंधाधर फॉल्स जो हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, और हम बोलते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय हम बोलते हैं कि अरेबियन सी ऑन बे ऑफ बंगाल, ये नेचुरल रिसोर्सेज के हम बोलते हैं कि बेस्ट एग्जांपल है वाटर बॉडीज के. अभी हम बोलते हैं कि मेन मेड मेन मेड टूरिज्म. तो मेन मेड टूरिज्म किसको बोलते हैं? मेन मेड टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया along with the natural resources along with the natural resources of tourism. India has developed a large number of man-made tourist sites also. Man-made tourist sites also. कि नेचर रिसोर्सेज के साथ इंडिया में मेन मेड टूरिस्ट साइट्स भी ज़्यादातर हमको दिखाई देती है. तो वो कौन सी है जैसे दिखते हैं आगे कि मेन मेड टूरिस्ट साइट्स में इंक्लूड ऑल द एस्टेब्लिशमेंट आर क्रिएटेड बाय द मैन with a view to boost tourism or have become famous tourism destination over the time. This is due to the unique characteristics of a distinctive history. तो मेन मेड हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी से बना हो या ह्यूमन बींग ने बना हो तो उसके लिए मेन मेड टूरिज्म इस्तेमाल किया जाता है. कि फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेस्टिनेशन है या अभी हमने देखा कि मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये सब कुछ मेन मेड टूरिज्म में आता है. अभी उसके बाद आगे बात करते हैं दिस ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्टिव हिस्ट्री. तो ये उसके फीचर्स है कि फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्टिव हिस्ट्री होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अभी मेन मेड रिसोर्सेज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है. तो सबसे पहला पॉइंट है रिलीजियस कल्चर, हिस्टोरिकल एंड अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट. तो रिलीजियस और कल्चरल साइट्स किसको बोलते हैं? तो पिलग्रिमेज साइट्स एंड साइट्स ऑफ कल्चरल शोकेस or exchange all considered the part of man-made tourism attraction. This is because though cultures and religions are influenced by the natural environment, they are ultimately created or established by the mankind. कि रिलीजियस कल्चर हम बोलते कि फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेजेस है या रिलीजियस लोकेशन है तो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेड या इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरमेंट, बट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनकाइंड or it is established or it is created by the human being. So since India is the country of almost all the religions residing within its boundary with respective cultures, and it is obvious to have the variety of religious places here. There are innumerous religious places spread across the country. कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस आए हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी टेम्पल
जो हम सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है, फिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आए हुए हैं। देन 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स अक्रॉस द इंडिया आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हिंदू रिलीजन प्लेसेस। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हिंदू धर्म के हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता, हिंदू धर्म को दिखाता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग हर 12 जगह, अलग अलग जगह फैले हुए हैं। देन द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब, देन जामा मस्जिद इन दिल्ली, churches of Goa are the famous example of the religious places belonging to the other religions in India. Similarly, many culture programs are organized to attract the tourists from all over the world. This shows the showcase India's varied culture regions that are not even very known to the people. For example, Jaisalmer Desert Festival in Rajasthan, Khajuraho Dance Festival in Madhya Pradesh, and Ranutsav in Gujarat, which are held every year to boost the tourism. तो ये हम बोलते कि रिलीजियस कल्चर या कल्चरल साइट्स को बूस्ट करने के लिए कौन से एक से आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसलमेर डेजर्ट है, जो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में बनाया जाता है। फिर खजुराहो डांस फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में हर साल में होता है। और रणोत्सव जो गुजरात में हर साल में मनाया जाता है, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। आगे हम देखते हैं अभी दैट historical sites that historical sites include the monuments and places like historical importance. History has been created by the mankind, hence all the structures, places and historical important objects are also considered to be the product of mankind's interaction with their time. तो हिस्टोरिकल साइट्स आपको क्या बताते हैं? हिस्टोरिकल साइट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस का कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये किसने बनाया? तो ये ऑब्वियसली ह्यूमन बींग ने बनाया है। और उसके लिए हम बोलते कि क्या बताया गया आपको यहाँ पे? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कंसिडर टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन काइंड इंटरेक्शन विद द टाइम। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको क्या देता है, दिखाता है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको ये दिखाता है कि आपका हिस्ट्री से कंसर्न कितना था, वो आपको दिखाता है। इन इंडिया देर आर सेवरल सच मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स which depict the mythological and the post mythological history। कि इंडिया में कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं कि जो हम बोलते हैं कि माइथोलॉजिकल कंसेप्ट या हम बोलते हैं कि पोस्ट माइथोलॉजिकल हिस्ट्री कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस प्लेसेस सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी and exploratory attitude of the researchers, historians and other interested people। तो ये प्लेसेस किसको ज़्यादातर हम इस पे कौन काम करता है? तो एक तो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि रिसर्चर्स काम करते हैं, हिस्टोरियंस काम करते हैं, और विद इंटरेस्टेड पीपल दे आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल द कुतुब मीनार इन दिल्ली, द विक्टोरिया पैलेस इन कोलकाता, द सतुपा of Ranchi at Ranchi, Ram Janmabhoomi in Uttar Pradesh, forts of great Shivaji, all caves like Ajanta Hillora caves in Maharashtra, the sites of Jallianwala Bagh, Massacre in Punjab are the good example of the historical sites of tourism in India. One of the seven wonders of world Taj Mahal. It is also included in the historical sites। आगे हम बात करते हैं। तो ये सिर्फ सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं आपको इसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये आपको समझ में आता है। आगे बात करते हैं अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट साइट कौन सी है। मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस एनिमल एंड कीप्स फाइंडिंग आउट नेवर वेज ऑफ सेटिस्फाइंग एंड एंटरटेनिंग हिमसेल्फ एंड आउटकम ऑफ दिस अम्यूजमेंट पार्क एंड अदर साइट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो जी, इंसान जो है एक ऑब्वियसली एक ऑलवेज क्यूरियस एनिमल है, उसको नया नया या नई नई चीज़ें उसको आकर्षित करते हैं, नई खोज नयापन उसको आकर्षित करते हैं, जो हमेशा उसको हम बोलते हैं कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ वो नया ढूंढता रहता है। तो उसके लिए अम्यूजमेंट पास है या अदर साइट्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो उसने क्रिएट किए, तो वो कौन से अभी हम देखते हैं। इन इंडिया देर आर सेवरल अम्यूजमेंट पार्क लाइक एडलाप्स इमेजिका एंड एसएल वर्ल्ड इन द महाराष्ट्र। एडलास इमेजिका एंड एसएल वर्ल्ड जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस है, अक्षरधाम इन दिल्ली। देन
Wonderella parks at the Bangalore, Kochi and Hyderabad and many more. And other sites of entertainment may include the examples of Ramoji Film Studio in Hyderabad and Film City in Mumbai, Kingdom of Dreams in Gurgaon. So these are the places of amusement or entertainment sites which attract that or which satisfy that human being. अभी ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा है जिसमें हम बोलते हैं कि बहुत सारे ये फॉर एग्जांपल जब आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। ये देखिए, जो स्टार वाला है वो वाटर बॉडीज है, जो ये पॉइंट है वो रिलीजियस है, जो ये डार्क वाला पॉइंट है वो हिस्टोरिक से है। अगर जैसे हम बोलते हैं कि स्क्वायर वाला है वो अम्यूजमेंट के लिए, और जो ट्रायंगल वाले हैं वो हिल स्टेशन। तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ का हिस्ट्री का प्लेसेस है, रिलीजियस पार्ट्स हैं, वाटर बॉडीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे हम बात करते हैं तो चैलेंजेस फेस बाय इंडिया, दैट अभी टूरिज्म में भी क्या चैलेंजेस पाए गए हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन एंड प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज therefore huge. The resources that India has already insufficient to meet the needs of the population. Thus, shelling out extra resources for additional demand by tourism industry is a difficult task for India. तो रिसोर्सेज तो है लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये एक उसका बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जैसे इंडिया को हम बोलते हैं कि सेकेंड ओवर पॉपुलेशन कंट्री, मोस्ट ओवर पॉपुलेशन कंट्री माना जाता है। बिकॉज अगर हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज हैं लेकिन हम बोलते हैं कि उस पॉपुलेशन की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो रिसोर्सेज थोड़े क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आगे देखते हैं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू insufficient capital and the shortage of resources of tourism infrastructure inadequate in India. Tourism infrastructure includes transportation facilities, accommodation facilities, availability of hygienic and multi-cuisine food and beverage, and a huge manpower to extend hospitality to the tourists. Lack of planning and expert required by the quality development is the main cause of inadequate tourism infrastructure in the country. तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है उसका पॉइंट, क्या है देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है पर उसका हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड ज़्यादा होती है और उसका हम बोलते हैं कि नीड्स उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। और दूसरा है कि इनसफिशिएंट कैपिटल एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। तो उसको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को जब इंक्लूड किया जाता है तो उसमें कौन से फीचर्स आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, फिर हम बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक सिस्टम कहाँ है, दैट हाइजीनिक फूड कहाँ है, बेवरेज and huge manpower to expand the hospitality to the tourist। तो hospitality of tourist वो हमको वहाँ पे कम दिखाई देती है, और accommodation facilities भी हमको ये कम दिखाई देती है। तो lack of planning and expert require the quality by the quality development is the main cause of inadequate। तो अभी उसको हैंडल करने के लिए जो एक्सपर्ट चाहिए और हम बोलते हैं कि जो प्लानिंग चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस को, तो वो हमें कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से उसके जैसे हम बोलते हैं कि एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या? इंडिया इज politically very active nation. It has many political parties, so the incidents of fights and the riots are the common feature here. When such incidents take place in the country, the tourists believe that it is unsafe to travel here and trend of tourism is affected। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो हमारे भारत में जैसे हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी ज़्यादा है, देर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस instability of political parties, sometimes that riots or fights
are taken place in some places. So because of that fear, the tourists do not like to travel in this situation, and it also affect the tourism. तो ये आपको कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा या ऐसे बहुत सारी सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ दंगा फसाद ये वगैरह होता रहता है, तो जिसकी वजह से लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि अभी इस सिचुएशन में ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अनफोर्सिन इवेंट। अनफोर्सिन इवेंट मतलब क्या? द नेचर और मैन मेड डिजास्टर आर कंसिडर्ड अनफोर्सिन इवेंट्स that recently many disasters have occurred in India either due to the man-made causes or natural causes. That once the disaster occurs, it takes a long time for the country to recover from the situation and bring everything back to the normal. The difficult situation of the disaster affected the places do not allow the tourists to visit them, and the tourism is affected. So unforeseen events मतलब क्या? अनफोर्सीन इवेंट मतलब क्या है? मैं समझते कि जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं और मैन मेड डिजास्टर होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं कि बहुत सारा नुकसान सहन करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल हम बोलते हैं कि डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर होते ही रहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे भूकंप है, या हम बोलते हैं कि साइक्लोन है, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बाढ़ है। So these are that natural resource, natural disaster. Because of that, that everything whenever the time it takes a long time to recover. अभी बैक ये सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ इवेंट्स जब आ जाते हैं, तो सब कुछ एब नॉर्मल हो जाता है। उसको ठीक ठाक करने में बहुत सा टाइम लग जाता है, और नॉर्मल स्थिति पे आने के लिए, नॉर्मल सिचुएशन को आने के लिए थोड़ा सा हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सबका सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उसी टाइम में टूरिस्ट पे वो ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, टूरिस्ट इंडस्ट्री पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। बिकॉज इट डजेंट अलाउ और it doesn't allow the tourists to visit them, and the tourism is affected. That government policies. अभी नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब क्या? द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज क्रूशियल इन द डेवलपमेंट इन एनी इंडस्ट्रीज। If the policies is laid down by the government are strict and applicable and supportive, the concerned industry can develop very well. But in India, the policies laid for the development of tourism industries are not so strict and supportive, giving setback to the industries. तो गवर्नमेंट पॉलिसी आपको क्या बताती है कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब क्या कि जहाँ पे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दैट गवर्नमेंट इज playing the important role for playing for giving policy to every industry. But sometimes these policies are not strict and applicable, and because of that it is not developed by the other industries also। कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट देती है पर वो ज़्यादातर अप्लीकेबल नहीं होती, कि जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट दिखाई देती है। और मोस्ट प्रोबेबली जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई स्ट्रिक्टली या सपोर्टिव पॉलिसी वहाँ पे हमको दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो एक सेटअप नहीं हो सकता। और हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया जाता, कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म का हम बोलते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द लेक ऑफ स्किल मैन पावर। द टूरिज्म इज हाईली लेबर intensive intensive industries requiring skilled labor on the large scale.
Due to the lack of awareness about the scope of industry, lack of training institute, only the few people are able to get the training required to suit the tourism industry. Hence, the industry is the dependent on the limited manpower and having a tough time expanding the further. So टूरिज्म जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक स्किल लेबर या बोलते हैं कि एक एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है कि जो हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही कम दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम जब टूरिज्म इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसका स्कोप क्या है या उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वो ट्रेनिंग ट्रेन पर्सन होना चाहिए उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे उसको ट्रेन होना चाहिए लेकिन ऐसे टूरिज्म मीन्स जैसे कभी भी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को चाहे कि विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट एक्सपर्ट ये टूरिज्म इंडस्ट्री और ठीक ठाक तरीके से नहीं चल सकती और उसके लिए ऐसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ही हमें कम दिखाई देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो टूरिज्म इंडस्ट्री है एक तो वो लिमिटेड मैन पावर हमको वहाँ पे दिखाई देता है दे एंड हैविंग अ टफ टाइम एक्सपांडिंग इट फर्दर अभी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए उसको एक्सपांड करने के लिए इट ऑल्सो टेक्स द टाइम कि ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग दिया मीन्स फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट ने ट्रेनिंग दिया वहाँ पे 1-2 साल काम किया 5 साल काम किया फिर छोड़ दिया नहीं तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए दैट मैन हैज़ टू गिव हिज years to years in that particular industries अभी हम आगे हम बात करते हैं नेशनल टूरिज्म पॉलिसी तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी मतलब क्या In 1982, the Indian government presented the first tourism policy and it took the government until 2002 to present updated policy document. तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो हमारे इंडिया में सबसे पहले 1982 में प्रेजेंट किया गया था इस पॉलिसी को और जो हम बोलते हैं कि अभी तक वो 2002 तक उन्होंने ये हम बोलते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी है उसको अपडेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की तरह दिखाया गया था In the early days of independent India, that quite rationally the government didn't pay much attention to the tourism. कि जब हम आज़ादी के दिनों की बात करते तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था The first public milestone in the history of tourism was creation of the Indian Tourism Development Corporation जिसको हम बोलते हैं कि ITDC in 1966 तो आज़ादी के बाद हम कुछ सालों बाद तो इंडस्ट्रीज टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जैसे तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो 1966 में शुरू किया गया था दिस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज मीन टू डेवलप द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज उसका एम क्या था कि उसका एम ये था कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड किया जाए ऑन द स्टेट लेवल सिमिलरली द कॉरपोरेशन वर एस्टेब्लिश एंड ऑल दो अनविलिंगली एंड आफ्टर कंसिडरेबल डिले तो जब उसको स्टार्ट किया गया तो स्टेट लेवल पे उसका काम किया गया तो कुछ कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किए गए कुछ कॉरपोरेशन बनाए गए बट कहीं ना कहीं हम बोलते कि वजह ना वजह से या हम बोलते कि चाहे ना चाहे वजह से उसको हम बोलते कि कहीं ना कहीं उसको डिले किया गया मीन्स एक साथ मिलके वो काम नहीं किया गया so their budgets were small and the scale of their operations were limited दो उनका बजट कम था और हम बोलते कि उनके जो हम बोलते कि जो स्कोप थे वो भी थोड़ा सा लिमिटेड थे मोर एवर द टूरिस्ट सर्विसेज दे ऑफर वर जनरली कंसिडर सबस्टैंडर्ड एंड इनडिफरेंट तो टूरिस्ट को जब भी वो प्रोवाइड किया जाता था तो उसके लिए हम बोलते कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका वो कैसा था कम था सब स्टैंडर्ड था और हम बोलते कि इनडिफरेंट था मीन्स कॉमन था कि फॉर एग्जांपल जो भी कुछ कॉलेज जब ऑर्गेनाइजेशन जब उनको प्रोवाइड करता था तो ज़्यादातर उसमें शायद फैसिलिटी ना हो कि जिसकी वजह से टूरिज्म प्लेसेस या हम बोलते कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज का उस टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था अभी आगे बात करते हैं द फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात करते हैं जो 1982 में हुई The first significant policy initiative were taken in the early 1980s with the prospect of hosting Asian Games of 1980
Two, the Indian government had to start thinking about the accommodating, transporting, and entertaining the large number of visitors attracted by the event. कि जब ये पॉलिसी के बारे में बात किया गया तो उससे पहले 1980s के 1980 से पहले वो पॉलिसी को 1980 से उसको सोचा जाता था. द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, अभी ये पॉलिसी स्टार्ट किया 1982 वाला जब पॉलिसी स्टार्ट किया था तो उससे 2 साल पहले उसका सोचना चालू था कि अभी इस पॉलिसी को किस तरह से अभी अप्लाई किया जाए. तो उसके लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको अकोमोडेशन कैसे किया जाए, ट्रांसपोर्टिंग कैसे किया जाए, उसको एंटरटेनमेंट कैसे किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते कि लार्ज नंबर विजिटर्स वहाँ पे आए और उस इवेंट को प्रेजेंट करें. So this awakened the serious public interest in the tourism, and which was enhanced by the fact that tourism was India's largest earner of foreign currency. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये 1982 वाली पॉलिसी जब उसको एस्टेब्लिश किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे आने लगे, और जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलने लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री 1982 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ. Then the objective of this policy is to so develop tourism industry in such a way that first point is becomes unifying force nationally and internationally, fostering the better understanding. कि जब भी टूरिस्ट बाहर से टूरिस्ट आने लगे तभी उनके हम बोलते कि लाइक्स डिसलाइक्स या नेशनली या इंटरनेशनली क्या डिफरेंसेस है या क्या कल्चर्स में क्या डिफरेंस है वो समझ में आने लगा. सो इट बिकमिंग द फॉस्टरिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग. Then second point is help the preserving India heritage and culture and projecting the same to the world. तो टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद इंडियन हेरिटेज को या कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस गया गवर्नमेंट का. तीसरी बात है द ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन and revenue generation and foreign exchange. So because of that tourism policy, that it it takes the advantages of the social economic benefits like जैसे for example employment, income generation, revenue generation and foreign exchange में उसमें बढ़ावा होने लगा. The next point is gives direction and opportunity to the youth of the country to understand the aspiration and the viewpoint of the others and helps in the greater national i- integration. So इसकी वजह से क्या होता, फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी की वजह से क्या हुआ that it gives the new direction to the youth so they can at least understand the aspiration and other points of the others, means other cultures also, others means that likes and dislikes also, which create that greater integration between the states, which create the greater integration between the two countries also. So it also gives the one kind of employment to the youth also. The next point is offers opportunity to the youth of country, not only for the employment but also for taking up the activities for the nation building and the character building like sports, adventure, and etc. So after this national policy, 1982 national policy, when it took place, so that government is also going to think about that buildings like sports, adventure and other features of the particular country. Now we will see the National Tourism Policy 1982 gave a boost to the tourism and suggested improvements on various aspects like infrastructure to support increasing the tourist arrivals in India and the promotion of the tourism so that the Indian tourism destination become popular worldwide and focus on the various types of the tourism potential in the country. So here, what is written that it shows that after onwards that national policy 1982 it gives the boost or it boosts the tourism and suggested improvement on various aspects like this infrastructure and the tourists coming or the tourist arrival
So the government pay more attention on the arrival of the tourists, and they can enhance the facility for the tourists also, and the places so which can which can be the famous for the worldwide, that Indian places will be the famous for the worldwide. Now we will discuss about the new tourism policy 2002. That next point is in the Chief Minister's conferences held on October 30, 2001. Then the Prime Minister of India, Sri Atal Bihari Vajpayee, had highlighted the importance of tourism for the growth and the development of the country. सो उसके बाद जब 1982 के बाद 2002 में एक नई नेशनल न्यू टूरिज्म पॉलिसी जब उसका एस्टेब्लिश किया गया, वो कब बताया गया, तो 30 अक्टूबर को 2001 को ये न्यू पॉलिसी दाखिल किया गया, जो उस टाइम के हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़े और कंट्री को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकली और सोशली इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले। आगे देखते हैं फॉलोइंग दिस द न्यू टूरिज्म पॉलिसी Following this, the new tourism policy was formulated in 2002. The government announced the policy with an aim to project India and formulated in 2002. The government announced the policy with an aim to project India and the worldwide brand so as to ensure the benefits from escalating traveling and the travel globally and infinite potential in India that has not been tapped as a tourist destination. The objectives of the National Tourism Policy 2002 are as follows. The first point is placing tourism as the main economic growth engine. So here after 1982, the 2002, this policy was included as a source of income, and which can be give support to the government, Indian government, and the trade globally all over the India. तो उसका सबसे पहला पॉइंट रहा है कि प्लेजिंग टूरिज्म, ये हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंजन की तरह काम करता है। दूसरा है हार्नेसिंग and multiplier effects of tourism beside direct effects for the general generative employment, development of economy, providing momentum to the rural tourism. तो हाँ, जब हम बोलते कि बहुत सारी जैसे हम बोलते कि मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म हमको जब दिखाई देती है, तो वो कहीं ना कहीं किस तरह से दिखाई देती है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, या हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसे हम बोलते हैं कि मोमेंटम खड़ा किया जाता है कि जो रूरल एरिया में बिठाया जाता है या रूरल एरिया में उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, तो रूरल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और हम बोलते हैं कि टूरिज्म को एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। Then next point is as a main tourism growth driver, more focus is being laid on the domestic tourism. तो डोमेस्टिक टूरिज्म की तरह हम बोलते कि टूरिज्म को एक ड्राइवर की तरह देखा जाता है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक रिसोर्ट हो, डोमेस्टिक कल्चर हो, उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म पे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं that placing India as a worldwide brand so as to benefit from the accelerating travel and trade globally and infinite potential in India has not been tapped as a tourist destination. तो जब हम प्लेजिंग इंडिया मीन्स हम बोलते हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं या इंडिया में जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं या टूरिस्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उसके लिए ट्रैवल उसका हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रैवल फैसिलिटी भी उतना एफिशिएंट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से टूरिज्म डेस्टिनेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा होगा, उतना ट्रैवलर्स को या हम बोलते हैं कि टूरिस्ट को वो ज़्यादा उनके लिए मच बेनिफिट, या हम बोलते हैं कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी मच बेनिफिट होगा और टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एंजॉय कर सकेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एग्जांपल उसका हम एग्जांपल देना हो तो केसरी। तो केसरी ट्रैवलिस्ट दे आर ऑल्सो गिविंग द मोर फैसिलिटी
to the tourist. If you pay the if that particular what we can say that if you pay that particular amount of that particular destination, just you have to only pay, and after onwards they are taking all the responsibility of the tourist to travel from beginning to the end of the tourism. तो वो सब कुछ फैसिलिटी वो उनकी हो जाती है और उनकी जिम्मेदारी हो जाती है. Then next point is private sector's critical role is acknowledged with the administration working as a catalyst and the proactive facilitator. तो जितना टूरिज्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ हम बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह वो काम करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट वो प्राइवेट सेक्टर से टूरिज्म इंडस्ट्रीज को मिलता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स of tourism on the basis of heritage culture and unique civilization in India in the partnership with the private sector, state and other agencies. तो जब भी हम बोलते हैं कि टूरिज्म को डेवलप करना हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि उसका जो हम बोलते हैं कि जो कल्चर है, उसका हेरिटेज है या उसका सिविलाइजेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ चाहिए. कि जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज के बाद जो हम बोलते हैं कि मैनमेड रिसोर्सेज है, या हम बोलते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ चाहिए और दूसरे एजेंसी से जुड़ा हुआ चाहिए, कि जिसकी वजह से टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके. Then next point is ensure that tourists coming to India get mentally rejuvenated and physically eh, invigorated and spiritually elevated and culturally enriched. Feel India from the beginning. तो जब भी एज अ टूरिस्ट हम कहीं किसी प्लेस को जब हम उसको विजिट करते हैं, तो एक तो हमारा एम होता है कि टूरिस्ट को क्या चाहिए. तो टूरिस्ट को क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल रेजिनोवेट मीन्स दे आर गोइंग टू एंजॉय द प्लेस. फिजिकली दे आर इविगोरेटेड मीन्स हम बोलते हैं कि फिजिकली उसमें थोड़ा सा चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस में जैसे बोलते हैं कि जब उसको विजिट किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि ट्रैकिंग और अदर जो स्पोर्ट्स वगैरह या अदर जो एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से फिजिकली उनको एक, और स्पिरिचुअली कि जब हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअली हम बोलते हैं कि उनको एक नई डायरेक्शन मिलती है, और कल्चरली जो कल्चर स्टेट बाय स्टेट, और हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि टूरिस्ट टू टूरिस्ट प्लेसेस जो बदलता है वो उनमें दिखाई देता है. तो वी शैल स्टॉप हियर.